Hello students. In the last video I have started first lesson from our syllabus. The name of the lesson is rational numbers. In that we have discussed how or what is the sequence of natural numbers, what is the sequence of whole numbers, what is the sequence of integers, what is the sequence of integers, and after that we have seen little about a rational number. In that we have not seen what is the sequence of rational number, but we have seen what is the form of rational number. The last example, the fourth example, many of you they asked me also, sir, in that fourth example, find the value of x. I have taken example 2x is equal to 3, and finally I got the value of x is 3 upon 2. Here 3 upon 2 is not an integer, it is a rational number. ऐसा मैंने लिखा था उधर, तो वो रैशनल नंबर का फॉर्म है, यानी कि रैशनल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ही लिखा जाता है. जब हम व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट कंसेप्ट रैशनल नंबर, दैट टाइम यू विल कम टू नो दैट. बट up to that point I want only you must revise what is the sequence of natural number, what is the sequence of whole numbers, and what is the sequence of integers. Only those points I want from you peoples. मुझे आपसे यही उम्मीद है ओनली कि तुम्हें नेचुरल नंबर की सीक्वेंस मालूम हो, तुम्हें होल नंबर्स की सीक्वेंस मालूम हो, और इंटीजर्स कैसे लेके जाते हैं ये मालूम हो. ओके, तभी तुम जो आगे की प्रॉपर्टीज़ है वो अच्छी तरह से समझ सकते हो. इसीलिए मैंने वो तुम्हें दिखाया है. और वो एग्जाम्पल सॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी, इक्वेशन लेने की क्या ज़रूरत थी, अभी तुम्हें समझ में आएगा. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम दिस लेसन. पॉइंट इधर लिखा है, देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर्स. Properties of rational number. In this first property is closure property. What is the name of property? Closure property. Here also I am going to consider first of all whole numbers. इधर मैंने whole numbers लिखा है, तो पहले whole numbers की प्रॉपर्टी देखेंगे, बाद में इंटीजर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, बाद में नेचुरल नंबर्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, और फाइनली हम जाएंगे रैशनल नंबर तक. ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? What is the purpose behind it? The purpose behind it is that if you know the properties of whole numbers and integers, easily you will understand the properties of rational numbers, because you know that what is the system, what is the exact procedure to understanding this concept. Then I am going to start now. Look here, first point I have written here closure property in that whole numbers. Okay, so property के लिए I am going to prepare here one table. Look here and try to understand. Operation, which operation we are going to use over here? Operation in the sense, mathematics में 4 operations important होते हैं. First operation is addition, second one is the subtraction, and third one multiplication, and fourth one division. ये 4 operation बहुत ही important होते हैं. By using those 4 operations we are going to discuss today the properties of whole numbers. Properties of whole numbers. Okay, operations. Here I am going to write numbers, and lastly remark. हमें क्या रिमार्क मिलता है? ओके, इस क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या रिमार्क मिलता है? सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग, सर ये पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कीजिए. मैं तुम्हें यही राय देने वाला हूँ, ये सजेशन दे सकता हूँ. इधर जो वीडियो बनाया है वो वीडियो में मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, व्हाट आई एक्सप्लेन्ड, दैट यू लिसन केयरफुली. लिसन. इफ यू आर नॉट गेटिंग इन एट फर्स्ट टाइम, again you listen. If you are not getting second time, again you listen 2-3 times. When you are going to listen, when you will understand English, that time 100% you will get the meaning of concept. And I am using here Hindi and English simultaneously. I am maximum time I am using in this video Hindi. For what purpose? Because some students from your class little getting confusion. For that purpose I am using this Hindi. But you try to understand in English only, because English is very important, because all syllabus is given into the English. Okay, I am going to start. Look here. Closure property. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सिलेक्टेड होल नंबर्स. हमने होल नंबर सिलेक्ट किया है, तो इसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर्स की क्या है, होल नंबर्स की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, हम स्टार्ट करेंगे. ओके, एज आई टोल्ड यू हियर, हाउ मेनी ऑपरेशंस आर देयर इन द मैथमेटिक्स? 4 ऑपरेशंस. इन दैट फर्स्ट ऑपरेशन आई एम गोइंग टू कंसिडर ओवर हियर. व्हाट इज द फर्स्ट ऑपरेशन? एडिशन. Addition. Okay, when we are doing the addition of whole numbers, then what we are getting? When we are doing addition, or we can say when we are using this operation, which is operation addition operation on whole numbers,
when we are using addition operation on whole numbers, then what remark we are getting, that we will see now here. Suppose I will take again one example, 0 plus 5, 0 plus 5, तो आंसर क्या आएगा 5. ओके, आई विल टेक वन अनदर एग्जांपल, 4 प्लस 7, आंसर क्या आएगा 11. अभी इधर देखो, सिंपल प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनो और देखो. 0 प्लस 5 क्या आ गया 5 आ गया. 4 प्लस 7 व्हाट आई गॉट 11. इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली आंसर्स 5 एंड 11, ये 5 एंड 11 जो है वो होल नंबर्स हैं. एब्सोल्युटली वो क्या है होल नंबर्स है. यानी कि इसका कंक्लूजन ये हो गया, इधर क्या आया 5 एंड 11 आर विच नंबर होल नंबर्स. 5 and 11 are whole numbers. What it shows, what it gives us, it shows that when we are using two whole numbers for addition purpose, when we are using two whole numbers for addition purpose, the answer which is coming, that number is also whole number. Do you understand what I said? When we are using two numbers for addition purpose, इधर 0 whole number है, 5 whole number है, आंसर क्या आ गया 5. 5 whole number है कि नहीं है, whole number. ये देखो 4 होल नंबर है, 7 होल नंबर है, आंसर जो आया 11, ये भी होल नंबर है. यानी कि इधर 5 और 11 होल नंबर्स है. इसका मतलब ये है व्हेन वी आर यूजिंग एडिशन ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, दैट टाइम 100% द आंसर विच इज कमिंग ओवर देयर, दैट आंसर इज ऑल्सो होल नंबर. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? ओके, तो हम रिमार्क क्या लिखेंगे, होल नंबर्स. देखो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से, होल नंबर्स, फिर से लिखता हूं इधर देखो, होल नंबर्स क्या, होल नंबर्स आर क्लोज्ड इन और अंडर एडिशन. समझे कैसे लिखना है? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है. राइट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर्स, तो ये तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा, ध्यान से देखो. ओके, एग्जाम में पूछेंगे तो ये ध्यान से देखो क्या लिखना है. सिंपल है, क्या लिखना है देखो, सिंपली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वंस अगेन. हियर व्हाट विच ऑपरेशन आई हैव यूज्ड हियर, एडिशन. एडिशन में मैंने ये नंबर यूज किए, 0 प्लस 5, तो आंसर क्या आया 5. 4 प्लस 7, तो आंसर क्या आया 11. तो 5 एंड 11 बोथ आर होल नंबर्स. इसका मतलब क्या है, इसका कौन सी भी नंबर ले लो, कौन सी भी नंबर ले लो, ओनली माइनस नहीं लेना है, होल नंबर्स ही लेने हैं. समझ में आ रहा है? होल नंबर्स किधर से स्टार्ट होते हैं तुम्हें मालूम है, अभी 0 से स्टार्ट होते हैं. तो 0 से स्टार्ट हुआ कौन सा भी नंबर, 0 1 2 3 4, इसमें से कौन सा भी नंबर ले लो और उसकी एडिशन करके देख लो, वो 0 और जो लास्ट नंबर है उसके बीच में ही आएगा. इसका लास्ट नंबर इन्फिनिटी होता है, तो आंसर क्या आएगा, होल नंबर ही आएगा. समझ में आ रहा है? इसका मतलब यह है होल नंबर्स, रिमार्क क्या लिखा हमने, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. यानी कि होल नंबर, दो होल नंबर का एडिशन अगर किया जाए तो होल नंबर ही आता है. ओके, सेम वी विल कंटिन्यू नाउ. नेक्स्ट ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन. कौन सा है नेक्स्ट ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन. अभी देखो इधर देता हूं, मैं लेता हूं 5 माइनस 7, 5 माइनस 7. ओके, बहुत सारे स्टूडेंट को सब्ट्रैक्शन में भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए 5 माइनस 7 का वो आंसर क्या लिख देते हैं, इधर 5 में से 7 नहीं जा सकते ऐसा बोलते हैं. लेकिन एक बात ध्यान में रखो, अपोजिट साइन ऑलवेज यू हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. इधर सब्ट्रैक्शन के लिए अपोजिट साइन है, यानी कि इधर 7 की साइन है माइनस और 5 की साइन है प्लस, तो सब्ट्रैक्शन ही होगा. तो क्या करना पड़ता है, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो. तो 7 में से 5 गए, बचे कितने 2, और ग्रेटर नंबर कौन सा है 7, उसका साइन क्या है माइनस, तो इधर क्या है आंसर -2. डू यू अंडरस्टैंड? तो 5 माइनस 7 इज इक्वल टू व्हाट वी गॉट -2. अभी देखो -2 होल नंबर की सीरीज में आता है क्या, सीक्वेंस में आता है क्या? नो. मीन्स व्हाट वी कैन राइट, -2 इज नॉट अ होल नंबर. -2 इज नॉट अ होल नंबर. इसका मतलब ये है कि जब दो होल नंबर का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर जो आएगा वो होल नंबर होगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं है. मीन्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2 होल नंबर्स फ्रॉम ईच अदर,
वी आर नॉट गेटिंग आंसर इज ऑल्सो होल नंबर। तो हम रिमार्क क्या लिखेंगे, देखो इधर, होल नंबर्स what whole numbers are not closed under subtraction. होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मीन्स क्या होता है, दो होल नंबर का अगर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो होल नंबर ही होगा, इसकी कुछ गारंटी नहीं है। इट शोज दैट, what it shows that when we subtracting two whole numbers from each other we are not getting answer is also whole number. This is the second property, यानी कि आंसर होल नंबर ही नहीं आता। नेक्स्ट कौन सी है, कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन। ओके अभी देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 0 इंटू 3, आंसर क्या आया 0। ओके 3 इंटू 7, आंसर क्या आया 21। इधर देखो 0 एंड 21 आर कौन से नंबर है, होल नंबर है। 0 एंड 21 आर होल नंबर्स, समझ में आ रहा है, 0 एंड 21 आर होल नंबर्स। अभी इसमें भी सम स्टूडेंट्स दे में आस्क यू, दे में आस्क अस, व्हाट दे में आस्क अस, इधर मैंने अगर माइनस साइन लिया तो, फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो माइनस साइन इधर लिख ही नहीं सकते, यू कांट यूज योर माइनस साइन। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे इधर माइनस साइन आया था, माइनस साइन आया था इसलिए हमने क्या लिया, नॉट क्लोज्ड, यानी कि माइनस साइन और ये माइनस नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते हैं, इसलिए जो नंबर्स हम ले रहे हैं वो नंबर सारे होल नंबर्स ही है। तो हमारा कंक्लूजन क्या है, देखो व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग, इधर देखो कौन सा भी अगर होल नंबर लिया जाए, ओके वी आर डिस्कसिंग अबाउट होल नंबर्स, कौन सा भी अगर होल नंबर लिया जाए और उसका मल्टीप्लिकेशन होल नंबर से ही किया जाए तो आंसर आएगा होल नंबर ही होगा। ओके इधर देखो 0 इंटू 3 0, 3 इंटू 7 21, इट मीन्स दैट 0 एंड 21 आर होल नंबर्स। इट मीन्स दैट 0 एंड 21 आर होल नंबर्स। ये क्या बताता है हमें, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर होल नंबर लेने के बाद आंसर, होल नंबर लेने के बाद और उसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर होल नंबर ही आता है, हमने देखा इधर होल नंबर ही आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, दो होल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आता है वो होल नंबर ही होता है, समझे, वो क्या होता है, होल नंबर ही होता है। ओके आर यू गेटिंग। तो आंसर कैसे लिखना है, रिमार्क कैसे लिखना है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर कैसे लिखना है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन हमने लिखा। ओके अभी लास्ट कौन सा ऑपरेशन बचा, डिवीजन। अभी डिवीजन करके देखते हैं, 5 होल नंबर है, उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, पहले सिंपली फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 8। इसका आंसर कैसे, डेसिमल पॉइंट में आंसर आएगा, डू यू अंडरस्टैंड। तो डेसिमल पॉइंट का कौन सा भी नंबर होल नंबर में नहीं आता, 5 डिवाइड बाय 8 ये फॉर्म भी होल नंबर में नहीं आता, समझ में आ रहा है, ये 5 डिवाइड बाय 8 फॉर्म भी होल नंबर में नहीं आता। इसका आंसर हम निकालेंगे तो डेसिमल पॉइंट में आएगा, वो भी किधर नहीं आ रहा है, वो किधर नहीं आता, होल नंबर में नहीं आता। यानी कि डिवीजन करने के बाद, दो होल नंबर की डिवीजन करने के बाद होल नंबर आंसर नहीं आता। हियर 5 डिवाइड बाय 8 इज नॉट अ होल नंबर। तो आंसर हम क्या लिखेंगे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर, whole numbers are not closed, whole numbers are not closed under division, whole numbers are not closed under division। समझे कि नहीं समझे, ये देखो ये प्रॉपर्टीज है, किसकी प्रॉपर्टीज है, होल नंबर्स की, डू यू अंडरस्टैंड।
ये प्रॉपर्टीज हमें क्या बताती है, इसका नाम है प्रॉपर्टीज का क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्लोज होता है क्या, ये हमें देखना है ओनली। इसलिए मैंने क्या किया, 3 पॉइंट्स लिखे, ऑपरेशन, नंबर्स एंड रिमार्क। ऑपरेशन कौन से हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हमने देखा 2 होल नंबर का अगर एडिशन किया जाए तो होल नंबर ही आता है। तो हमने रिमार्क क्या लिखा, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। 2 होल नंबर का सब्ट्रैक्शन किया तो होल नंबर नहीं आ रहा है, तो होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन किया तो होल नंबर ही आ रहा है, तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन किया तो डिवीजन होल नंबर नहीं आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में आ रहा है? ओके, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आई थिंक सो यू गॉट लिटिल आइडिया अबाउट इट। ये अभी हो गया होल नंबर्स का। अभी मैं इधर स्टार्ट कर रहा हूँ इंटीजर्स का। आई एम गोइंग टू स्टार्ट हियर नाउ अबाउट इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स का भी सेम है, इधर हमें वही देखना है, इंटीजर्स का एडिशन करने के बाद इंटीजर आते हैं क्या, अगर आते हैं तो क्या लिखना है, क्लोज्ड, अगर नहीं आते तो क्या लिखना है, नॉट क्लोज्ड। ओके, अब इधर देखो, ऑपरेशन, इधर क्या है, नंबर्स, और इधर क्या है, रिमार्क। ओके, पहला ऑपरेशन एडिशन। अभी 2 इंटीजर्स में लेता हूं इधर, इधर देखो, अभी पहला ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन। -6 + 5 इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, -1। कैसे आंसर हम -1 आएगा, ग्रेटर नंबर कौन सा है, 6 में से 5 गए, 1 आ गया, तो ग्रेटर नंबर का साइन कौन सा है, माइनस, तो आंसर क्या आ गया, -1। ओके, अभी इधर देखो, -1। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेता हूँ, -7 - 5, क्या आंसर आएगा, -12। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी सोचते हैं माइनस माइनस प्लस होता है सर, नो, एडिशन में कभी भी प्लस नहीं होता, एडिशन में साइन वैसे के वैसा रहता है। इधर देखो, इंटीजर्स में 2 तरह के नंबर होते हैं, यू नो दैट वेरी वेल, विच वन, प्लस एंड माइनस। तो अभी इधर माइनस भी आंसर आया तो इंटीजर भी आएगा, इंटीजर में ही आएगा, और प्लस आंसर आए तो भी इंटीजर में ही आएगा। यानी कि इसका मतलब क्या है, इधर -1 एंड -12 एंड -12 आर क्या है, इंटीजर्स। -1 एंड -12 आर इंटीजर्स, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी कि 2 इंटीजर्स का एडिशन करने के बाद आंसर जो आ रहा है वो भी इंटीजर है, वो नंबर भी क्या है, इंटीजर है। तो 100% हम क्या लिख सकते हैं, रिमार्क, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए 2 नंबर लेंगे, देखो 7 - 5, आंसर आया 2। पिछला एग्जांपल लेंगे, 5 - 7, आंसर आया -2। +2 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, +2 पॉजिटिव इंटीजर है, -2 निगेटिव इंटीजर है, दोनों भी इंटीजर है। इसका मतलब यह है, कौन से भी 2 नंबर ले लो, उसका जो आंसर आएगा सब्ट्रैक्शन करने के बाद वो क्या होंगे, हियर 2 एंड -2 आर इंटीजर्स। यानी कि कंक्लूजन क्या हो गया, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। अभी तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आया होगा क्या इससे लिखना है, अगर आंसर वो ही उसमें से ही आ रहा है, इसीलिए मैंने तुमको क्या बताई थी, सीक्वेंस बताई थी और ऐसे इक्वेशन लिए थे, क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन तुम्हें थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए। ओके, तीसरा ऑपरेशन कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन करके देखो, 5 × 8 एग्जाम्पल लेता हूं मैं, 40 आ गया, -5 × 4 लेता हूं, -20 आ गया। इधर देखो, 40 भी इंटीजर है, -20 भी इंटीजर है। ओके, 40 पॉजिटिव इंटीजर है, -20 निगेटिव इंटीजर है। इसका मतलब क्या हुआ, 40 एंड -20 आर आल्सो इंटीजर्स। तो इसका भी हम क्या लिखेंगे, इंटीजर्स आर क्लोज्ड
अंडर मल्टीप्लिकेशन। कितनी सिंपल प्रॉपर्टी है। आई थिंक यू आर गेटिंग लिटिल आइडिया अबाउट इट। समझ में आ रहा है। आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट प्रॉपर्टी डिवीजन। समझो 3 को मैंने 5 से डिवाइड किया। अब इधर देखो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 को मैंने किससे डिवाइड किया है? आई हैव डिवाइडेड 3 बाय 5। तो इधर भी आंसर क्या आएगा? 3 डिवाइड बाय 5 पहले लिखेंगे हम, बाद में 5 से 3 को डिवाइड करेंगे। इधर आंसर डेसिमल पॉइंट में आएगा, यानी कि डेसिमल पॉइंट किस में नहीं होते? इंटीजर्स में नहीं होते। यानी कि 3/5 इज नॉट एन इंटीजर। यानी कि डिवीजन करने के बाद जो आंसर आता है वो इंटीजर होने के चांसेस बहुत लेस है। इसलिए इसका रिमार्क हम लिखेंगे, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर कौन सा? डिवीजन। अंडर डिवीजन। समझ में आ रहा है। इसका मतलब यह है, अभी मैंने तुमको 2 पॉइंट्स दिखाए। एक पहला पॉइंट दिखाया था होल नंबर, दूसरा पॉइंट दिखाया है इंटीजर्स। इसका मतलब यह है होल नंबर में भी यही देखना है। होल नंबर में पहले एडिशन देखी, बाद में सब्ट्रैक्शन, बाद में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इधर भी हमने क्या दिखा है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एडिशन के लिए हमने दो इधर इंटीजर्स लिए, उसका आंसर भी इंटीजर्स आया, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए 2 इंटीजर्स लिए, उसका आंसर इंटीजर्स ही आया, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन के लिए 2 इंटीजर्स लिए, उसका आंसर भी इंटीजर्स आया, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। बट एट द टाइम ऑफ डिवीजन लिटिल डिफरेंट वन, वी गॉट हियर आंसर डिफरेंट, दैट्स व्हाई हियर इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। समझ में आ रहा है? ओके ये है प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर एंड इंटीजर्स। ये मैंने सेपरेट पेज पे लिखा है, वो मैं पेज अभी इधर दिखाने जा रहा हूँ। यही ऐसे के ऐसे तुम्हें क्या लिखना है, ये नोट्स में लिखना है। अभी देखो पहले से दिखाता हूँ। हमने आज शुरू किया है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। क्या शुरू किया है? प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। सम स्टूडेंट्स वेर सेइंग दैट सर पेज अच्छी तरह से दिख नहीं रहा है, तो अब आज पूरा पेज क्लियरली दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे के ऐसे क्या करो, नोटबुक में कॉपी करो। रिकॉर्डिंग ये है होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। होल नंबर्स में पहले एडिशन हमने लिया था, सेम एग्जांपल्स इधर भी है। सब्ट्रैक्शन, बाद में मल्टीप्लिकेशन, बाद में डिवीजन मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वो एक्सप्लेनेशन देखो, समझ में आएगा। ये था होल नंबर्स। बाद में मैंने तुमको दिखाया ये दूसरा पेज। बाद में मैंने तुमको प्रॉपर्टीज दिखाई। कौन सी प्रॉपर्टीज थी? इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज थी। अभी इंटीजर्स देखो, एडजस्ट करता हूँ पेज। इंटीजर्स देखो, एडिशन -6 + 5 इज इक्वल टू -1, -6 + 5 इज इक्वल टू -1 है ये। एंड इंटीजर्स, देन ये भी देखो इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। बाद में सब्ट्रैक्शन, बाद में मल्टीप्लिकेशन और बाद में डिवीजन। ओके ये सारी प्रॉपर्टीज मैंने एक्सप्लेन की है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा फास्ट दिखाया है। ओके तो तुम ट्राई कर सकते हो। इसके लिए मैं एक एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज तुम नेचुरल नंबर के हिसाब से देख लो, प्रैक्टिस करके देख लो। प्रिपेयर अ टेबल ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल द 4 ऑपरेशंस फॉर नेचुरल नंबर्स। ये नेचुरल नंबर के लिए तुम क्या करो? प्रॉपर्टीज यूज करो। आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टीज। रैशनल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी और बाकी की जो प्रॉपर्टीज है, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।